Hello viewers, I hope and wish you all are fine and healthy at your respective places. So today we are having a new topic related to classification of goods in economics. In our previous video we distinguished between consumption goods and producer goods, right? So similarly in this class we will be discussing one more classification of goods in economics, that is final goods and intermediate goods. Understood? So let us start, we will proceed. So what are final goods and intermediate goods? As you can see on the screen, we have divided them into two sections with the help of a table, so that it will be easier for you to understand and to compare bit by bit or one by one. So we will start with the final goods. So what are final goods? Goods which are used either for consumption or investment purpose are called final goods. So here we have to understand what is the meaning of consumption, right? Here you have written that any goods which is used either for consumption or investment is called final goods. So what is consumption you have to understand, what is investment you have to understand. Okay. So consumption, as we know, in a two-sector economy there are two sectors, one is called household, the other one is called farm. Household is the consumer sector, farm is the producer sector, right? So whatever goods and services produced by the farm, it is sold to the household, and household consumes those goods and services to fulfill its own wants and needs, correct? So that means in a two-sector economy, whatever goods and services purchased or consumed by the household, they all are called final goods. Understood? Similarly, in the same two-sector economy, if the firm is purchasing anything from the household like land, labor, capital, raw materials, all these things. So why does the firm purchase all these things? Because the firm wants to produce something by utilizing these resources or these factors of production. So investment means what? Creation of new physical asset. In economics, investment means creation of new physical asset. It can also be human capital formation. As we know, government spends money on education, health, training of the human resource of the country, so that the human resource can be converted into human capital, right or not? So whether it is human capital formation or physical capital formation, like construction of buildings, construction of industries, construction of roads, construction of airports, all these things, they also come under what? कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. तो इसी तरह से अगर कोई भी कमोडिटी जो कि कंजम्पशन के लिए यूज होता हो और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फाइनल गुड्स कह सकते हैं. तो फाइनल गुड कैन बी यूटिलाइज फॉर कंजम्पशन पर्पस, ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. चलो अब आगे बढ़ते हैं. दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है, डोंट थिंक दैट देयर इज एनी सच फिजिकल बाउंड्री कि जिसको हमने क्रॉस कर लिया और वो कमोडिटी फाइनल गुड बन गया, राइट नॉट? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन, जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं हमारे लाइफ में, कोई भी एक चीज़ के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? आप जो टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हो, जो मोबाइल अभी आप देख रहे हो, वो मोबाइल कैसे बना? उसमें जो रॉ मटेरियल बना, वो क्या मोबाइल ये डायरेक्टली तुमको मिल रहा है कहीं पेड़ से या तो फिर नेचर से हमको डायरेक्टली मिल रहा है? नो, ठीक है कि नहीं? तो ये मोबाइल को बनाया जाता है, इसका डिफरेंट पार्ट्स को बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तब जाके मोबाइल हमको मिलता है, राइट और नॉट? तो जैसे कि मैंने बताया, एक चीज़ प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा प्रोडक्शन स्टेजेस के अंडर वो प्रोसेसिंग वर्क में जाता है, राइट और नॉट? सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेसिंग वर्क ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ए कमोडिटी बिकम्स यूजफुल, राइट और नॉट? तो जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर है, मतलब वो कम्प्लीटली अभी यूज के लायक नहीं हुआ है, वो फाइनली
इट इज़ नॉट रेडी फॉर यूज बाय द कस्टमर, तो वो कमोडिटी अभी तक बाउंड्री के अंडर ही है, ठीक है। दैट मीन्स द कमोडिटी हैज़ नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको हम फाइनल गुड नहीं कह सकते। तो जब वो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाएगा, दैट मीन्स नाउ द कमोडिटी इज रेडी टू बी यूज्ड बाय द कस्टमर, वो कस्टमर अब इसको डायरेक्टली यूज कर सकता है और उसका यूटिलिटी ले सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है, देन इट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड। तो ये होता है प्रोडक्शन बाउंड्री, जो भी कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको अच्छा से समझेंगे। चलो अभी मूव करते हैं। देयर मनी वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम, जो फाइनल गुड्स है उसी गुड का ही मनी वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हम जीडीपी जानते हैं, जो कि क्या होता है, जीडीपी मीन्स द मनी वैल्यू ऑफ द टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होते हैं, उसका जो मनी वैल्यू है, टोटल मनी वैल्यू, उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो फाइनल गुड का ही मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, प्लीज़ इसको नोट करना। अभी प्रोसीड करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की तरफ, ठीक है। देखो, तो गुड्स दैट आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और कंप्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द सेम ईयर, ये दोनों चीज़ों को हम बीट बाय बीट समझेंगे डिवाइड करके। तो फर्स्ट ये है कि जो कमोडिटी रीसेल के लिए बनी हो, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा अभी। मान लो कि मैं एक बाइक प्रोड्यूसर हूँ, मैं बाइक प्रोडक्शन करता हूँ, और आप जो हो वो आपका एक दुकान है बाइक का, आप बाइक सेल करते हो, आपका एक शोरूम है बाइक का अपने एरिया में, ठीक है। तो आपने क्या किया, मुझसे बाइक ली, क्यों लिया, मुझसे जो आपने बाइक खरीदा, 10-15 बाइक आपने खरीदा, क्या आपने यूज़ के लिए खरीदा कि आप उसको सेल करने वाले हो कस्टमर को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर इज दैट यू आर गोइंग टू सेल इट टू द कस्टमर्स। तो आप क्या कर रहे हो, मुझसे जो बाइक आप खरीदे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि जो कस्टमर को आपके एरिया में बाइक चाहिए वो आपके पास आएगा, बाइक खरीद सकता है, ठीक है कि नहीं। तो लाइक इन दिस वे यू आर प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू द सोसाइटी और द कस्टमर्स ऑफ योर एरिया। तो जब तक वो बाइक आपसे सेल नहीं हो जाता है, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही माना जाएगा, बिकॉज स्टिल द गुड इज नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, बिकॉज यू आर नॉट द फाइनल यूजर। जो उसको खरीदेगा, यूज करेगा, वो फाइनल यूजर होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, जब एक चीज़ रीसेल के लिए बनी हो और वो रीसेल के लिए अभी मार्केट में है, तब तक वो क्या होगा, वो फाइनल गुड नहीं कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलो सेकेंड बात ये है कि कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल, जैसे कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल का यूज होता है, या तो फिर हम एक चीज़ को लेते हैं, उससे उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, वी गेट सम अदर कमोडिटी, राइट और नॉट। तो इस तरह से कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ भी एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि सपोज हम गारमेंट बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, और कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कटन चाहिए। तो अल्टीमेटली कटन से हमको ड्रेस मिलता है, राइट और नॉट। तो अगर एक आदमी ने, एक प्रोड्यूसर ने, जो कि कपड़े का बिजनेस करता है, जो गारमेंट का बिजनेस करता है, सपोज मान लो कि वो 10 क्विंटल कटन खरीदा, किससे, एक फार्मर से, एक साल, मतलब 2020 का बात ले लो या 2019 का बात ले लो। लेट अस से इन द ईयर 2019 ए गारमेंट कंपनी परचेज्ड कटन ऑफ 10 क्विंटल्स फ्रॉम ए फार्मर। तो अभी वो क्या करेगा, कटन इज रॉ मटेरियल फॉर हिम, राइट और नॉट। तो कटन को क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि वो गारमेंट बनाएगा, ड्रेस में कन्वर्ट करेगा और ड्रेस को सेल करेगा मार्केट में। चलो मान लेते हैं कि वो जो कंपनी था 2019 में 10 क्विंटल जो कटन खरीदा एज रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को पूरा यूज नहीं कर पाया, 6 क्विंटल उसने यूज किया, 6 क्विंटल से उसने क्या बनाया, गारमेंट बनाया, जिसको कि मार्केट में सेल किया। तो अभी जो 6 क्विंटल कटन यूज हुआ गारमेंट बनाने में, वो क्या कहा जाएगा, उसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स। तो अभी बचा कितना उसके पास, अभी भी उसके पास 2019 में वो 4 क्विंटल कटन को यूज़ नहीं कर पाया, वो एज इट इज़ रह गया, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया कपड़े में, राइट और नॉट। तो जैसे खरीदा था उसी तरह से वो रह गया, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड नहीं कहेंगे, वो क्या बन जाएगा, उसको कहेंगे इन्वेंटरी, ठीक है कि नहीं, जो कि हम बाद में समझेंगे व्हाट इज इन्वेंटरी, हम बाद में उसको
कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यू रिमेंबर दिस दैट इफ समथिंग इज used as a raw material for producing another commodity and that raw material is not completely used in the same year of its purchase, तो वो इंटरमीडिएट गुड में नहीं आएगा। अगर सेम ईयर में वो जितना भी यूज हो जाता है उसको हम मानेंगे क्या, इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि इन एग्जाम्पल जो मैं अभी गारमेंट का इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया उसमें जो 6 क्विंटल कटन यूज हो गया वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड, और जो 4 क्विंटल कटन बच गया सेम ईयर में प्रोडक्शन 2019 में प्रोडक्शन हुआ था और 2019 में 4 क्विंटल कटन यूज नहीं हो पाया बाय द गारमेंट इंडस्ट्री, तो दैट विल बी कॉल्ड इन्वेंटरी। ओके, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर, राइट। सेकेंड, दीज गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक एक कमोडिटी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, दैट मीन्स उसमें अभी भी चेंजेस होने वाले हैं, उसको अभी भी यूज करने लायक को नहीं बना है, कुछ उसमें बदलाव लाने वाले हैं हम लोग, या तो इट इज स्टिल इट हैज़ टू गो अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो अभी तक तो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, सो दैट ए पर्सन कैन यूज इट एज ए फाइनल यूजर। तो जब तक एक कमोडिटी बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करता है वो माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। जब वो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर जाएगा तो हो जाएगा फाइनल गुड, राइट। थर्ड, द मनी वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज नॉट कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम। ये इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू हम जो है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, किसमें, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। क्यों नहीं करते हैं, क्यों, अगर इसको हम काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग में चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। डबल काउंटिंग क्या है वो भी हम पढ़ेंगे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे थ्रू डिफरेंट मेथड्स, विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज डबल काउंटिंग। ओके, अभी हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या है। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कोल, कॉटन, आयरन ओर एटसेट्रा बाय फार्म्स। ये सब जो कि जितने भी सारे रॉ मटेरियल हैं जो एक फार्म खरीदता है, क्यों खरीदता है, वो रॉ मटेरियल को यूज करके दूसरा कुछ चीज़ बनाएगा और सेल करेगा, तो सब रॉ मटेरियल बन जाएंगे क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड आ गया कार्स परचेज्ड बाय ए डीलर फॉर रीसेल। कार हो, रेफ्रिजरेटर हो, बाइक हो, साइकिल हो, मोबाइल हो, जो भी हो, जो एक डीलर खरीदता है प्रोड्यूसर से, क्यों खरीदता है, रीसेल करने के लिए खरीदता है। तो ये जो चीज़ रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं वो भी माना जाएगा किस में, इंटरमीडिएट गुड्स में, ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ए फार्म इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय व्हाट, ए प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यूज करता है एक प्रोड्यूसर तो वो भी माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। देन क्लॉथ परचेस्ड बाय टेलर फॉर मेकिंग गारमेंट। एक टेलर कंपनी अगर कपड़ा खरीदता है, जिसका टेलर का बिजनेस है, सपोज कपड़ा खरीदता है, क्यों कपड़ा खरीदता है, वो गारमेंट बनाएगा, सेल करेगा, तो कपड़ा उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, वो फाइनल गुड नहीं होगा। डिफेंस गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग डिफेंस सर्विसेज। जैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये हमारा डिफेंस विंग्स हैं, तो यहाँ पे जितने भी डिफेंस कमोडिटी, इक्विपमेंट, वेपन्स वगैरह खरीदे जाते हैं, क्यों खरीदे जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमको वो सब चीज़ों का यूज करके डिफेंस सर्विस देने वाला है। डिफेंस सर्विस मीन्स फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो डिफेंस गुड खरीदा जाता है उसका यूज होता है क्या प्रोडक्शन करने में, डिफेंस सर्विस प्रोडक्शन करने में। देश को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ये सब चीज़ों का खरीदारी करती है, राइट और नॉट। तो इसलिए डिफेंस गुड्स जो खरीदता है गवर्नमेंट वो भी माना जाएगा किसमें, आपका इंटरमीडिएट गुड्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, प्लीज़ नोट कीजिएगा। वन गुड कैन बी फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। एक कमोडिटी जो है फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड भी हो सकता है। कैसे होगा, सेम टाइम में ये कुछ भी, कोई भी टाइप का गुड हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसका एंड यूज के ऊपर। एंड यूज मतलब अल्टीमेट, फाइनली कैसे वो यूज होता है और कौन इसको यूज करता है, कैसे यूज करता है। दो टर्म मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हु इज यूजिंग दैट एंड हाउ ही इज यूजिंग दैट। ओके, मीन्स फॉर व्हाट पर्पस ही इज यूजिंग दैट। ये दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कौन आदमी यूज कर रहा है, मीन्स वो आदमी क्या है, प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है, हाउस होल्ड का है कि फार्म का है, वो चीज़ को आपको ध्यान में लाना है। सेकेंड, वो क्यों मतलब यूज करता है वो कमोडिटी को, मीन्स इज ही यूजिंग फॉर रीसेल और इज ही यूजिंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग टू सेल इन द मार्केट, और अपना
नीड फुलफिल करने के लिए यूज करता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कमोडिटी कौन सा टाइप का गुड के अंडर आएगा। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं एक डायग्राम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आयरन और लोहे का पत्थर से क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील से क्या बनती है, स्विंग मशीन बनता है, स्टिचिंग मशीन। ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं इसे बोलूँगा कि स्टिचिंग मशीन बनाने के लिए हमको स्टील चाहिए, स्टिचिंग मशीन स्विंग मशीन बनाने के लिए स्टील चाहिए, और स्टील को बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए। तो आयरन ओर से स्विंग मशीन का जो सफ़र है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेसिंग वर्क है, तो ये इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब तक आयरन और स्टील नहीं होता, स्टील से स्विंग मशीन नहीं होता है, लोगों को स्विंग मशीन नहीं मिलेगा, राइट और नॉट। तो ये जो आप रेड लाइन देख सकते हो चारों तरफ, यू कैन सी ए रेड लाइन, दिस रेड लाइन, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये देख रहे हो प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब आयरन ओर जब तक स्विंग मशीन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, स्टिल इट इज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, मीन्स सम प्रोडक्शन वर्क इज स्टिल टू बी डन टू द आयरन ओर, that means it will first be converted to steel, then steel will be converted to swing machine। तो तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, सपोज स्विंग मशीन अभी बन गया, एक कंपनी ने आयरन ओर खरीदा, उसको स्टील में कन्वर्ट किया, स्टील को फिर कन्वर्ट किया किस में, स्विंग मशीन में। तो अभी क्या करेगा वो, कस्टमर को सेल करेगा, राइट और नॉट। तो अभी कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं, कस्टमर कैन बी फर्स्ट हाउस होल्ड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने घर के लिए एक स्विंग मशीन खरीदा, क्यों खरीदा, मैं अपना घर का काम करूँगा, घर में मेरा जो फटे फटे कपड़े होंगे उसको मैं क्या करूँगा, स्टिच करूँगा, अपना यूज के लिए उसका खरीदा। तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्या, फाइनल एंड कंज्यूमर गुड। क्योंकि मैं हाउस होल्ड का हूँ तो इसलिए मेरे लिए कंज्यूमर गुड है। फाइनल गुड क्यों है, इसको मैं कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं। एंड उसके बाद मैं ना उसको रीसेल करने वाला हूँ, ना इसको इससे जो कपड़ा बनाता हूँ उसको सेल करके कुछ प्रॉफिट करने वाला हूँ। तो मैं इसलिए क्या बन जाएगा, कंज्यूमर गुड बन जाएगा। तो सेकेंड अभी देखेंगे हम, अगर इसको एक डीलर खरीदता है, मान लो कि आप एक डीलर हो, आपका दुकान है स्विंग मशीन का, तो आपने प्रोड्यूसर से 50 स्विंग मशीन खरीदे, किस लिए, लोगों को सेल करने के लिए। तो आप क्यों खरीदे, रीसेल करने के लिए। तो आपका पर्पस अलग है। मैं जो हाउस होल्ड के लिए खरीदा, मेरा पर्पस था अपना नीड फुलफिल करना। आपका पर्पस अभी क्या है, आपका पर्पस है लोगों को सेल करना, रीसेल करना। ठीक है, तो आपके लिए बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड, करेक्ट। थर्ड, अगर सेम स्विंग मशीन को एक टेलर खरीदता है, सपोज एक टेलर का जो जिसका टेलर का बिजनेस है वो खरीदता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। यहाँ पे एज यू कैन सी इट विल बी प्रोड्यूसर गुड, ये जो देख रहे हो आप नीचे, प्रोड्यूसर गुड एंड कैपिटल गुड। क्योंकि वो उसको यूज करके कुछ प्रोडक्शन करेगा, क्या प्रोडक्शन करेगा, कपड़ा सिलाई करेगा, ड्रेस बनाएगा, पैंट्स शर्ट्स कुर्ताज ये सब बनाएगा और लोगों को सेल करेगा। तो इसलिए वो कैपिटल गुड हो जाएगा, किसके लिए, टेलर के लिए। डीलर के लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। हाउस होल्ड के लिए हो गया फाइनल गुड एंड कंज्यूमर गुड। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एक कमोडिटी एट द सेम टाइम कैन बी consumer good, can be producer good, can be final good, and also can be intermediate good depending on the final user, right? So this is all for today. I hope you enjoyed this class. Keep on practicing and we will have a new topic with our coming video. Till then, have a nice day. Take care.